and they are using for the oil jetting or oil heating. Okay, so बस इतना लिखना है एग्जाम्पल. तो सेंटेंस में लिखकर वन वर्ड लिख सकते हैं ना. एग्जाम्पल में आप क्यों ले एग्जाम्पल अब जैसे केवल क्वेश्चंस में रह के ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है, पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया किसी स्पीसीज की बात ना करें, तो फिर अगर आपके पास वर्ड लिमिट अच्छी है, सपोज दैट 200 वर्ड लिमिट है, तो फिर इन दैट केस यू हैव टू यस हाँ फिर ठीक है, फिर वैसे लिखो तो एग्जाम्पल. सैटरडे क्लास होती है, तो मैंने एक दिन पहले पूछा तो पता चला सैटरडे क्लास में थी. मुझे तो ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. होना चाहिए रेगुलर, होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी कवर होनी चाहिए. चीज़ें जल्दी कवर होंगी तो इसमें फ़ायदा सभी का है. मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है ना. इसको ऐसे ही रहने दो. स्टार्ट करें. उम्मीद है क्या कुछ आने के लिए होंगे. टाइम तो हो गया. ओके ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ना, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं. ओके फॉर टुडे व्हाट शुड बी डिस्कस. हाँ कल क्या कर रहे थे अपन लोग. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट. ओके एप्लीकेशंस ऑफ, listen, every technology in the mains syllabus section, okay, the applications of every technology is very most important. आप कह सकते हो कि topics और most important points regarding the technologies. क्यों most important है? Because whenever the question is asking for a particular section, okay, suppose that if the question is that describe the transgenic organism, okay, and give the suitable example of the transgenic organism. और आपको words limit दे दिया, you have the 200 words limits. Okay, so in that case, application of the what? Application of the transgenic organism you have to describe, and the applications of the GM species is also the application of the biotechnology as well. Fine. Like जैसे for the industrial sector you have to describe the transgenic bacteria. Or you can say the bacteria which is insulin producing. Okay, insulin producing bacteria. So this is the application of the transgenic bacteria as well as application of the biotechnology in the industrial sector. Okay, and the use of the technology is always the main purpose of the use of the technology is for the socio-economic benefit. Socio-economic benefits. Okay. Socio-economic benefits. If the question is that elaborate or discuss the socio-economic benefits of biotechnology. Then कैसे elaborate करोगे आप? The question is that elaborate the socio-economic use of the biotechnology. Then how can you elaborate this? Okay. ठीक है, सबसे पहले ये दो वर्ड्स सोशियो, सोशल एंड फॉर द इकोनॉमिक. सोशल में ऑल द इन्वायरमेंटल जो भी कॉजेज एप्लीकेशंस हो सकते हैं. उसके अलावा मास प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, मास यील्डिंग, ओके, लाइक द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन. एंड वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज इन इंडिया. Okay, and they are the insulin dependent actually. So this mass production of the insulin by the GM bacteria, okay, is tackling the problems related to the insulin dependent diabetic patients. Okay, तो उसको क्या करेंगे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करते चलेंगे. एंड हाउ दिस इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल,
because we know that if we are extracting the insulin from the biological source, natural biological source, so this technique is more costly. अगर हम बॉडी से ही इंसुलिन निकालें किसी की और उसको दें तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा वो कंपैरिजन कि किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के जीन्स में हम क्या करें, आई इंट्रोड्यूस कर दें, इंसुलिन जनरेटिंग जो हमारे डीएनए सीक्वेंस हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दें. फाइन. तो these are the socio-economic benefits of the what? Biotechnology. Okay, socio-economic here in the next technology when we will talk about the space technology. Okay, when we will talk about the nanotechnology, robotics, nuclear technology और defense technology, उनका भी socio-economic benefits है किसका? Country का. All the technologies are actually helping to improve the wealth of nation. Wealth of nation. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से. ओके, जितना ज्यादा हम इस सेक्टर में काम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में एंड जितना ज्यादा इवॉल्व होते जाएंगे तो डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज पे क्या होगी हमारी, कम होती जाएगी. ओके, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग आवर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज. ओके, विच इज सेफर. वाई सेफर? बिकॉज वी नो दैट द ईच एंड एवरी कंट्रीज द रेसेस आर डिफरेंट. ओके, सपोज दैट वी आर इंडियन रेसेस. In the Africa, they are the African races, American races, okay, British races. वहां पे उनकी बॉडी का कंप्लायंस कुछ और हो सकता है कि द टेक्नोलॉजी इज सक्सेसफुल, वेरी मच सक्सेसफुल इन द अफ्रीकन कंट्रीज बट नॉट सक्सेसफुल ओवर इंडियंस. ओके, तो इन दैट केस बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, मे बी राइजेस आफ्टर द एप्लीकेशन और आफ्टर अप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस और दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. बट वेन वी डेवलप आवर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इट विल बी क्योंकि हमारे वॉलंटियर भी कौन होंगे, जो हम टेस्टिंग करेंगे उसके वॉलंटियर भी क्या होंगे, हमारे इंडियंस होंगे. फाइन. तो ये सब सारे क्या हैं इसके, बहुत ब्रॉड स्ट्रिक्ट. ऐसे सोचा करो ऐसे, और वही आपको लिखना है वहां पे. ये आप ना जब बुक से अलग लिख करके दे दोगे ना सामने वाले को तो उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ कुछ समथिंग न्यू मिला है इसमें. और बातें भी सही बोली जा रही है, ऐसा भी नहीं कि कुछ गलत बोला जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली ये सारी चीजें प्रूव्ड है कि व्हेन द रेसेस आर डिफरेंट सो द effect of the drug molecules or effect of the technologies are different in the different races. Okay, or different आप कह सकते हो जो भी आपके डीएनए और जीनोम्स हैं. फाइन. ओके, so yesterday we have discussed about the applications. Fine. After the applications हो गया था, अभी बाकी इसमें कुछ applications में we have to note it down that. And we have discussed about the transgenic organism. Transgenic organism. Okay. Actually, Assam is exporting the red rice to US. Okay, जो कल बात कर रहे थे अपन. Okay, Assam is exporting the red rice to the US. And red rice आप सब ने देखा होगा. I think the people who are belonging from the rural region और आपका जहां भी गांव होगा तो आपको रेड राइस देखने को मिलता होगा. कैसे होता है रेड राइस? एक्चुअली इनकी कोई कल्टीवेशन गांव में नहीं होती है. नॉर्मली तालाब वालाब में ऐसे निकल आते हैं और उसको फिर कट करके उसमें से बिल्कुल रेड इट्स लाइक कलर इज लाइक जस्ट आप आलमंड का कलर देखो ना तो जस्ट उसी का थोड़ा सा आप शेड कह लो, थोड़ा सा डार्क रहेगा. ओके, तो दीज रेड राइट्स आर हैविंग द hypoglycemic index. Okay, that means the glucose concentration of you can say the starch in this rice are less. Okay, अब ये लेस रहेगा तो इसका डाइजेशन लेट होगा. ओके, इनसाइड द बॉडी द फूड मटेरियल containing the glucose molecules are rapidly digested in our body. ओके, हमेशा चीज ध्यान रखना, ऐसे फूड मटेरियल जिसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है तो उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर में क्या होता है, बहुत रैपिड होता है. एंड दैट्स द रीजन कि आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद कुछ डेजर्ट लेना चाहिए, मीठा लेना चाहिए. हो सकता है कि वो मीठा कुछ भी हो सकता है. कुछ लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग गुड़ खाना पसंद करते हैं, जैगरीज वगैरह, राइट. सो वाई? बिकॉज दिस ग्लूकोज व्हेन मिक्स विद आवर द फूड so it increases the digestive rate. Fine. So
इन दिस केस दिस रेड राइस, इसका डाइजेशन क्या होगा, इसका डाइजेशन लेस होगा। दैट मीन्स आप इसको जब खाओगे तो आपका पेट भरा भरा लगेगा, लगेगा कि यस अभी डाइजेस्ट नहीं हो, पूरा पेट हैवी सा है ना। एंड इन दैट केस ये हंगर को रिड्यूस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हंगर रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स ओबेसिटी को ओवरकम करेगा, ये ओबेसिटी को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। फिर से बोलो, फिर से बोलो इसको। कोई एक ऐसा फेस्टिवल होता है अपने इधर यूपी और बिहार साइड में, बिहार में नहीं होता, आई थिंक यूपी में होता है, उसमें खाया जाता है ये, सारे फास्ट में नहीं। हाँ तो हाँ, कहीं कहीं ट्रेडिशनल वे में भी यूज किया जाता है ये रेड राइस हमारा। ओके लेकिन आसाम इज एक्चुअली आप कह सकते हो हैविंग अ वेरी गुड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेड राइस। ओके बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम इफेक्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे व्हाट इज द मैरीटाइम इफेक्ट, तो बे ऑफ बंगाल का मैरीटाइम इफेक्ट मिलता है, तो बहुत ही एक क्लाइमेटिक जो रीजन होता है बहुत ही अच्छा और बहुत फेवरेबल क्लाइमेटिक रीजन होता है। तो द बेसिन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कछार वाला रीजन होता है, लाइक जैसे गंगा रिवर के सराउंडिंग क्या होता है, कछार रीजन होता है ना, तो इन दैट रीजन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर द रेड राइस इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स ऑफ द आसाम। ओके और इसीलिए इसको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इसको, यूएस को। ठीक है चलो करते हैं बात। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, transgenic organisms we have discussed about the some bt crops। ओके और उसके अलावा क्या किया था हमने बात, नहीं एप्लीकेशंस नहीं, इसमें ट्रांसजेनिक में ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हम डिस्कस किए थे। गोल्डन पोटैटो डिस्कस किया था। ओके गोल्डन पोटैटो, ओके गोल्डन पोटैटो इज फॉर व्हाट, एक्चुअली नॉर्मल जो पोटैटो होता है दे आर कंटेनिंग द स्टार्च इन अ लार्ज अमाउंट, एंड स्टार्च इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्च रहेगा तो पोटैटो क्या करेगा, जो ग्लाइसीमिक कंडीशन है उसको इंक्रीज कर देगा, कहाँ पे, ब्लड में। तो इसीलिए आपने देखा होगा द डायबिटिक पेशेंट्स आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू डू नॉट टेक द पोटैटोज इन देयर मील, है सुना होगा ना, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, इसलिए उनको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर कि नहीं लेना आपने। फाइन ओके इन दिस गोल्डन पोटैटो देयर इज अ एक्चुअली स्यूडो सीरियल, स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो सीरियल्स, व्हाट इज सीरियल्स, सीरियल्स मतलब फुल ग्रेन, ओके लाइक मेजेस, ज्वार, okay bajra etc. Fine, so this is this a pseudo cereals are here which is known as the amaranthus. Amaranthus is nothing, रामदाना सुना है, रामदाना, क्विनोवा, क्विनोवा सुना है, रामदाना ये व्रत में खाया जाता है, ऐसे पट्टी आती है व्हाइट व्हाइट, उसमें उसके लड्डू भी आते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दिस इज द amaranthus. Amaranthus is a species of a plant having a आप कह सकते हो good source of fiber and proteins, fibers and proteins. Okay, that means some genes are here inside the amaranthus genome which is responsible for the synthesis of fibers and the protein. Okay, then in the case of the golden potato we are taking the genes of the desired traits which are responsible for the production of what, fiber and proteins, and just inserted into the potatoes gene by the genetic engineering. Okay, and we are and developed the golden potato. So now potato is having the quality with the production of the fibers and the proteins as well. ठीक है, okay. एप्लीकेशंस में क्या लिखा था, व्हाट वाज द लास्ट वन, एनवायरमेंटल कंप्लीटेड, ओके इंडस्ट्रियल हो गया था, नहीं, हाँ नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, industrial application of biotechnology. Right now, write down in this. For the mass production of many biomolecules, enzymes, hormones, and other materials to fulfill the requirement of a huge population or population. What is huge population? The techniques of the biotechnology. क्या लिखा था आपने? For huge population. हाँ, the techniques of biotech are using. Example, for example, by the insertion of, example में लिखेंगे आप, by the insertion of genes, responsible for insulin production, in bacterial plasmid. What is plasmid? Nothing. Actually, here is two types of the cells, prokaryote and the eukaryotes. Okay. In the eukaryotic cell, the genetic material is considered as the DNA. Fine. But in prokaryotic cell, this is considered a plasmid. So nothing. Plasmid, black and लिख लेना. This is the bacterial DNA. क्या लिखा था आपने? Responsible for the insulin production in the bacterial DNA. Okay. ऐसा लिखो. The genes for desired traits, are isolated from beta cells of pancreas. Okay. न्यू लाइन से लिखना. 10 और therefore ऐसा लिख लो. 10 लिखो. 10 the industrial production of materials, the industrial production of biomolecules लिखना. मटेरियल मत लिखना.
the industrial production of biomolecules is helping to improve the health and wealth of nation, the health as well as wealth of the nation. Okay. क्या हुआ? Okay, now next application is the biotechnology in energy production. How the biotechnology is used in the energy production? कोई idea? Next application in energy production. एनर्जी प्रोडक्शन, और आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी कंजप्शन को कम करना, दैट मीन्स द एनर्जी सेविंग. कैसे? हाउ? ओके, हाँ, नया टेक्नोलॉजी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी. जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस बायोटेक. अभी इसी बात करें. हाउ बायोटेक इज अप्लाइड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. कैसे? नो आइडिया. चलो मैं बताता हूं. विच इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप नॉर्मली देखते हो, विच वी कैन यूजिंग द ट्रेडिशनली वे. एसेंस ट्रेडिशनली वे भी यूज कर रहे हैं? नहीं. सुनो, कोल्स, पेट्रोलियम, मतलब सन बता दो, न्यूक्लियर बता दो, हाइड्रो पावर बता दो, है ना, टाइडल एनर्जी बता दो, सब बता दो. ये मत बताना जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है. एक्चुअली दीज आर कंसिडर्ड एज द व्हाट? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं इसको, फॉसिल फ्यूल्स. व्हाई दिस इज कंसिडर्ड फॉसिल फ्यूल्स? हाँ, ओके ओके ओके, बढ़िया है ना. दैट मीन्स द फ्यूल्स which is produced from the fossils. And fossils कैसे? Some organic materials are decomposed and then converted into the fossils. But this is a very long period of the process. है ना, बहुत long period. In the environmental application, we discussed about the bio remediation and the bio degradation. Biodegradation. Okay, that means by the use of some BT bacteria, not वो BT toxin वाला नहीं, GM bacteria बोलो ज़्यादा अच्छा है. Actually मैं biologically treated बोल रहा था उसको. So we are using the GM bacteria, then what should GM bacteria is responsible to do? Actually GM bacteria is get contacted in any organic materials and starting that decomposition of that materials rapidly. Okay, ये जो बहुत लंबे टाइम का प्रोसेस जो चला आ रहा है उसको हम शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस बैक्टीरिया. आप कह सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ द बायोडिग्रेडेशन. इसके अलावा इन द एग्रीकल्चर एप्लीकेशन we know that what we discuss about the fertilizers independency. Okay, by using this bacteria, okay, when the organic material, or you can say the dead organic material, ठीक है, living मत बोलो, the dead organic material
are decomposed and converted into the fossil fuels, as well as it also converted that dead material into the biofertilizers. Biofertilizers, which is known as the compost fertilizer. होते हैं कंपोस्ट फर्टिलाइजर. ओके. इस कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स को वी कैन यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. अगर ये कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स नहीं बनेगा तो इसकी जगह यूज करने के लिए वी विल यूज व्हाट? वी विल यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, NPK, etc. whatever. These are the chemical fertilizers which are produced industrially by the using of huge amount of the power. Okay? यहाँ से हम पावर का यूज क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं by using this bacteria. एक तो फ्यूल्स भी बना रहा है वो, और सेकंड क्या कर रहा है? वो बायो फर्टिलाइजर भी क्रिएट कर रहा है. इस तरीके से वो क्या करेगा? इट इन्हांसेस द ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन एक्चुअली. ओके, ऐसा ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन. इसमें किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हो रहा है. जो भी ऐसे मटेरियल पड़े हुए हैं जो कि कंसीडर किया जाता है ऐसा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके, तो उनका यूज करके ये लिख लो इसमें. by the applications of biotechniques, application of biotechnique, the bacterias are developed having the capability of rapid biodegradability. Rapid biodegradability. Degradability, है ना? Which can convert the dead organic material into the fossil fuels. They can convert the dead organic material into fossil fuels. So responsible for the green energy production and helpful in energy crisis. Helpful in energy crisis. Okay. ठीक है, completed the application. बहुत सारा लिख लियो आप. So these are the applications of the biotechnology, and when the question is asking regarding the applications, so try to mention all the things. Apart from this, ये ज़रूरी नहीं कि this is the sufficient for you guys. Okay, ये मैं आपको एक जनरल आइडिया देते हुए चल रहा हूँ, ठीक. और आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली हाथ बैठोगे, लेकिन आपको सर्च करते रहना है. जैसे मैं कल क्लास जब छोड़ करके निकला तो यहाँ पे जो कल बैठे थे साहब, वो हमको आए बाहर तो हमको बताए कि सर इन द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वी कैन ऑल्सो पुट द प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया.
ओके अभी ये कुछ दिन पहले आई थिंक कि 1.5 month before this was in news the plastic eating bacteria. Actually, the scientists are trying to develop a species of the bacteria which are using for the plastic eating. And why? For the environmental pollution को क्या करने के लिए, हम करने के लिए. We know that कि there is also मतलब प्लास्टिक का बहुत बड़ा ढेर लग गया, स्पेशली इन द ओशन, क्योंकि प्लास्टिक अल्टीमेटली पहुंचता कहाँ पर है, ओशंस में. ओके तो अभी कभी गूगल पे सर्च करना, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो पैसिफिक रीजन्स में ऐसे पूरा पूरा प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं कई स्क्वायर किलोमीटर से. कहाँ पे, हाँ ओके. तो वो जो प्लास्टिक गार्बेजेस हैं, व्हेन वी डेवलप्ड द प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, तो दिस प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया इज एक्ट्स लाइक अ ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया. और वो जा करके सारे प्लास्टिक को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. ओके और जब डाइजेस्ट करेंगे तो उससे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. नेचुरली उसको जाके ईट करेंगे, खाएंगे, फाइन. इस तरीके से उसको ओवरकम किया जाता है. तो यस, वी कैन पुट दिस ऑल्सो इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, द प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, बट दिस इज द अंडर डेवलपिंग. ओके अभी ये डेवलप नहीं हुए हैं, दिस इज द अंडर डेवलपिंग. कुछ उसमें किया जा रहा है अल्ट्रेशन. जब हो जाएगा कंप्लीट तब उसको हम मेंशन किया करेंगे कंप्लीटली, है ना. ओके so what is the genome? Why the genome is required and यहाँ नीड क्यों है डिस्कस करने के लिए अबाउट द जीनोम. वाई? बिकॉज when we are applying the genetic engineering methods, okay, genetic engineering जब भी करते हैं तो at the very first stage of the genetic engineering, firstly we have to identify the targeted, or you can say we have to identify the desired traits or desired genes traits. Clear? But to find out that desired gene, we have firstly understood the what is genome. Why? Because the sequences of the DNA is responsible for the particular traits. Okay, that means DNAs are made up of actually the DNA is making the genes. Genes are the made up of the DNA. So many DNA molecules are collectively known as a single genes. Okay, so that's why the sequence of that gene, and sequence for what? Sequence of that nitrogenous bases. that sequence बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सीक्वेंस. Okay, and the particular or specific sequence, or you can say the complete set of the sequence in DNA is considered as the genome. क्या बोलते हैं उसको? जीनोम. नॉर्मली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे डीएनए होते हैं. ओके, द complete set, DNA's complete set is known as the genome. That means suppose that if any traits, जैसे कोई भी एक traits ले लो, something जैसे किसी का कर्ली बाल है, ओके, तो for the curly hair, listen, for the curly hair, here is sequence in the DNA, and the sequence is ATCGATGC, something like this. So this is the sequence. So this will be considered a genome. That means this set of the information of the DNA is responsible for the particular that curly hair like traits. Okay, so this is considered as the genome. Clear? Okay, so genome is the nothing, this is the complete set of the DNA. Okay, and to study about the genome,
इज कंसिडर्ड एज द जीनोमिक्स. क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स. एक्चुअली इन द ईयर ऑफ, कौन सा ईयर था? लिसन. So, the information regarding genome is most important for the genetic engineering. Okay? अगर हम कोई अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें जीनोम पता होना चाहिए, ठीक, किसी भी स्पीसीज का, उस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के लिए और ट्रेड्स के लिए. फाइन. द जीनोम, you can say the creation of the genome is firstly started by the US. Okay? And in the year of the 1990, okay, the US is started to making the genome of the species. Okay, and this was a actually international program in which the US is leading, and after the US so many other countries are participated, including the France, including the Russia, including the Germany, Britain, and etc etc. But India was never the part of that program. इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया. एंड दैट वाज द HGP प्रोग्राम. HGP प्रोग्राम, दिस इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोग्राम. ओके, दिस इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, and this human genome project was leading by the US government. Okay, that means the National Institute of the Science and the US Institute of the Energy, ऐसा समथिंग कोई दो इंस्टीट्यूट थे यूएस के, उन लोगों ने साथ में मिल करके दिस दे आर इनिशिएटेड द HGP project, and this project are also known as the HGP read. HGP read. ओके, दैट वाज द HGP रीड. मैं इसको लिखवा दूंगा अभी, इसमें 2-4 लाइन आपने लिख लेना है. तो बट एंड व्हाई दिस genome project is responsible? This is responsible, you can say, the main aim or objective of this HGP or human genome project is that this is for the collection of the data regarding the DNA of the human beings. Okay, and for what? To study about the historical medical background of any generations. Okay, or you can say in the आप कह सकते हो कि upcoming future, when the some species of the animal get extinct, then we, after the collection of the data of the genome of that species, we can find the what are the actually the genome sequences in that species, and we can produce again the species. So we can protect the extinction of the some specific species of the animals by using this genomes. Okay, हमारे पास जीन्स रहेंगे, उसका डेटा कलेक्शन रहेगा, एंड वी कैन अल्टर द जीनोम्स ऑफ अनदर स्पीसीज बाय द हेल्पिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ से इस HGP का एड लेंगे और उसके दूसरे किसी स्पीसीज के DNA हम क्या कर देंगे? अल्ट्रेशन कर देंगे. ओके, एंड वी कैन produce the particular species of the animal. Okay, so this genome is very most important for the genetic engineering. लिखो इसके बारे में 2 लाइन about the genome. Genome is a complete set of DNA, a complete set of DNA in an organism, including all of its genes, okay. Genome can also
be chemically or can also be chemically or artificially synthesized chemically or artificially synthesized in the lab known as synthetic or artificial genome known as okay. नेक्स्ट लिखना HGP, उसी में शॉर्ट हेडिंग देना साइड में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फ्रॉम 1990 to 2003 from 1990 to 2003 it was an international research effort or program, whatever research effort or program to determine the sequence of human genome the human genome and identify the genes that it contains next line the United States started this project and later on other countries joined this program like England, Germany, France, China, etc. ओके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स of HGP main objective of HGP study of human genome main objective first इसकी स्टार बना के लिखना स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम सेकंड लिखना इसमें सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू जेनेटिक कोड collection of data related to genetic code, analysis of genetic material, and determination of total number of genes. Total number of genes. Okay. Next point से लिखना India did not participated in this program. India did not participated in this program. Next लिखना
HGP write, लिखने वाला write. This was the HGP read. Okay, this is the HGP write. This is started, or you can say this is launched in 2016. Launched in 2016 to build an artificial human genome to build an artificial human genome with sophisticated bioengineering tools. With sophisticated bioengineering tools. The potential applications of included dash करके included dash growing transplantable human organs, growing transplantable human organs, engineering immunity to viruses, engineering immunity to viruses in cell lines, engineering cancer resistance into new therapeutic cells, and accelerating high productivity cell and accelerating high productivity, cost efficient vaccines. Clear? रिपीट करें? हो गया कंप्लीट? ओके. Listen here. Actually, today India is also working for the genome collection. Okay, and recently India is making a successful effort to store the genome of Osmum sanctum. क्या है ये? Osmum sanctum. तुलसी प्लांट. इसका भी उन्होंने जीनोम हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, स्टोर्ड कर लिया है. ओके. द इंडिया इज यूजिंग द सीक्वेंस एनोटेशन टेक्नोलॉजी. ये क्या होता है? सीक्वेंस एनोटेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय द एनोटेशन? What is annotation? Annotation means nothing. This is the repetition. That means the repetition of the sequence. Okay, we find that, suppose that this is the DNA. Okay, and
when we studied about the genome of that DNA, we find that ATCG T A T C G C G A T C G, something like this. Okay, so we will find that this annotation of this sequence ATCG again and again in any genome. Okay, तो करेंगे क्या कि हम पर्टिकुलर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके we will find the genes for specific traits. ओके, एंड ये जीन्स को क्या करेंगे, इसको इसके सारे मतलब जो भी ऐसे डेटा मिल रहे हैं उसको कलेक्ट कर लेंगे. कलेक्ट करने के बाद वी प्रोवाइड दिस डेटा टू द बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, एंड दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स आर यूजिंग द सुपर कंप्यूटर. क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर? क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर? फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सुपर कंप्यूटर फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा. विच डेटा? ये जो यहां से जीनोम का डेटा दिया गया है, राइट. दिस इज लाइक दिस. इसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे. क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स एचजीपी के? बेनिफिट्स ऑफ द एचजीपी इसमें लिखना है, 2-4 लाइन देख लो. बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्या हुआ? बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बेनिफिट ऑफ एचजीपी. अब बायोटेक में 2-4 चीजें हैं जिनको बहुत लिखना पड़ता है. जैसे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अभी लिखोगे ना, तो डोंट वरी, मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, उसको जिराक्स दिलवा दिया जाएगा. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में नथिंग, हमें वही सब सारी चीज़ें द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में, या कुछ हमारे जैसे CCMBs वगैरह हैं. ठीक है, सेंटर फॉर द सेलर एंड द माइक्रो मॉलिकुलर बायोलॉजी. ओके, CCMBs वगैरह इन सब के हम बात करना है. तो उसमें कुछ समझाने लायक कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट मगअप दैट, क्योंकि उसको आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है. ठीक, तो उसका कोशिश करूंगा कि आपको जेरोक्स मिल जाए. ठीक, थोड़ा सा लिखने से बच जाओगे आप. ओके, बेनिफिट्स ऑफ एसजीपी इसमें लिखना. द आइडेंटि फर्स्ट लिखना, इसमें पॉइंट डाल के लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स: आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टेड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर. हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टेड genes responsible for genetic disorders. Okay, next पॉइंट लिखना. HGP is useful in gene therapy. Okay, next पॉइंट लिखना. The production of targeted custom drugs with less adverse effect. Production of targeted custom drugs with less adverse effect. Okay, next one लिखना. Identify the genes and proteins produced by that
genome. Next, determination of relation of human with other species. लास्ट पॉइंट लिख लें इसको. स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ radiations, toxins, pollutants on human. ओके, बहुत लिख लिया आज, है ना? ज़्यादा कुछ लिख लिया क्या? कोई बात नहीं. तो दिस ऑल आर अबाउट द जीनोम. सॉरी, आपके पास एक क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट है. असाइनमेंट आप ये चेक करके आओगे, जीनोम इन इंडिया. ठीक, दिस इज योर असाइनमेंट. इसमें HGP भी आपको मिलेगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन इंडिया. ओके, करके आना, फिर बताना कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं कि नहीं. एनकोड और GWAS something, this kind of the terms, or you can say the abbreviations you are getting or not. ठीक, ये सब उसमें मिलेंगे आपको. ठीक, जब मिल जाएंगे तो आप मुझे मंडे ये इन्फॉर्म करोगे. देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द एनकोड, व्हाट इज द जीवास. ठीक, चलो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द our major topic, the recombinant DNA technology. कुछ मत लिखना, केवल सुनो. द recombinant DNA technology discovered by कोई बताए? Okay. And what is the recombinant DNA technology? Nothing. This is the combination of the DNA again. That means we are performing the alteration in the combination of the DNA. That means the insertion of the new DNA, okay, from foreign body into a host DNA or into a host genome is considered as the recombinant DNA technology. Okay, this recombinant, हमेशा आपको यही मिलेगा शॉर्ट फॉर्म. This recombinant DNA technology is actually carried out by the two process. The first process is by the enzymes, and second is by the vectors. Vectors means what? Vector means carriers. Okay. चलो, अभी हम इनको दोनों को एक एक करके समझते हैं. बाय द एंजाइम्स क्या करता है, एंड बाय द वेक्टर्स क्या होता है. फाइन. ओके, इन केस ऑफ द recombinant DNA technology, we are first stage में selected the foreign desired DNA
foreign desired DNA. Okay. Now we, अब ये फॉरेन डिजायर्ड डीएनए, दैट मीन्स किसी भी फॉरेन बॉडी से लेंगे. इट मे बी एनी स्पीसीज, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सेल्स हो सकते हैं. ओके, इट मे बी एनी एनिमल सेल. सपोज दैट हियर इज, okay, here's the DNA. Okay, we are selected the desired sequence of the DNA. Okay, and just cut it out. The second step is cut the genes from foreign cell. Okay, यहां से कट किया एंड ये हमें फाइंड हुआ कुछ ऐसा. वी आर taking this sequence. Okay, now the third stage is, third step is we select the specific host cell. Host cell. A host cell for what? To introduce this foreign DNA. Okay. Here is the host cell. हमने यहाँ पे लिया. This one is the host cell. We found the DNA of host cell. Something. ये बहुत गंदा कलर ले लिया हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा. And we just found the DNA of the host cell. Okay. We have the sections of the foreign genes. पहले से already है. Okay. And we have to put these sections on this host DNA strands. अब obvious सी बात है, इसको अगर रिप्लेस करना है तो वी हैव टू कट दी सम सेक्शंस ऑफ दिस डीएनए. ओके, तो हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं काट रहे हैं कि जिसका बहुत ही स्पेसिफिक बेनिफिट हो. ओके, और इसीलिए जीनोम की रिक्वायरमेंट थी. ओके, जीनोम इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेट ऑफ द डीएनए. ओके, रिगार्डिंग द सेट ऑफ दैट डीएनए. ओके, वी सेलेक्टेड द होस्ट डीएनए and just replace this, and now the structure is formed. Like this. So here the newly recombinant DNA is formed. Okay, and this will consider as the recombinant DNA. This is the simple process of the recombinant DNA technology. That means nothing. This is just elaboration of this terms, recombinant DNA technology. Now, here is two processes in this case. Okay, the first is by the enzymes the recombinant DNA technology is performed. Here the cutting of the genes from the foreign bodies. Okay, and here the placing that genes to a host DNA. ठीक, अब ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. फाइन, इसके लिए करेंगे क्या? हियर इज एक्चुअली
two enzymes are working. The enzymes are the first enzyme is the restricted लिख सकते इसको आप, ठीक, restricted endonuclease. Okay, restricted endonuclease. And second is the ligase. There is two enzymes which are playing a role in the recombinant DNA technology. Restricted endonuclease are responsible for the cutting of DNA section. यहां से हमने जो सेलेक्ट किया है इसको, ओके, वी आर अप्लाइडिंग दिस restricted endonuclease on this, and we find that this section. Okay. Now this restriction endonuclease is also applied over here for the cutting of that section. Okay, and with the help of the ligase enzyme, the foreign DNA section is attached to the, there is ligase enzyme. Okay, and that is responsible for the fusion between the foreign genes or foreign DNA to the host DNA. Okay, so this process is carried out by the enzymes. Okay, so by the enzymes, the recombinant DNA technology is carried out by using these two enzymes. The first one is the restricted endonuclease and the second is the ligase. ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ जो ना आ रहा हो समझ में? क्लियर? ठीक है, क्लियर है? एनीवन? नहीं? ओके. Now the desired traits DNA from the foreign body is connected to the host DNA. ठीक है, this is the host DNA, and it will further what? Further get duplicated, replicated, and the DNA से DNA क्या हो जाएगा? फॉर्म करेगा. ओके, एंड जो नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है वो कैसी हो जाएगी? द नेक्स्ट जनरेशन with foreign desired characteristics or traits. Okay. So this is happened by the aid of, you can say, by the help of these two enzymes, the restricted endonuclease and the ligase. ठीक है, clear? Okay. Now the second was the what? Second was by the vector. By the vector. Actually, by the vector process, the recombinant DNA technology is most complicated. Why? Because the suitable vector, the selection of the suitable vector is a very complicated process. Vector, that means the host cell which are carrying the DNA. Which DNA? The foreign DNA. Okay. एंड बाय द वेक्टर प्रोसेस, इसमें हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल एग्जांपल हमारा इंसुलिन बैक्टीरिया वाला रहेगा. इसमें कर दूं इसको रफ? करना इसको? करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं. सो द सेकेंड प्रोसेस बाय vector, by enzymes we have discussed, by vector. What is the vector? क्या हुआ? What is vector? Vector is nothing. Vector is considered as the virus or plasmid. ओके, लिसन, ये भी अच्छे से समझो. वायरस और
प्लाज्मिड। वायरस आप जानते हो क्या होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है ये भी आपको पता है। द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज कंसिडर्ड एज द प्लाज्मिड। ओके, है ना। देखो, इन दिस केस फर्स्टली वी आर टेकिंग द, ऐसे एग्जांपल समझो, this is nothing, this is the pancreas. Okay, and from pancreas we are taking the beta cell. Okay, and from the in the beta cell here is an sequence of DNA which are responsible for the I production. I is stand for the insulin. Clear? Okay, we just identify this. ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझना। now we will take the plasmid, or you can say the virus, any virus. Okay, यहां पे है, इसके अंदर इसका अपना प्लाज्मिड है, इसका प्लाज्मिड, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। Okay, this is the virus. Okay, in the process by which is carried out by the enzymes, we are artificially inserted the what, inserted the DNA from the foreign body to the host body. Clear, and by using the two enzymes, the nuclease and the ligase, endonuclease and the ligase. In the case of vector process, we are selecting a vector, and this vector is known as a carrier. कैरियर समझते हो, जो कैरी करके ले जाए, साइकिल के पीछे लगता है ना कैरियर, जस्ट वही वाला। तो दिस इज कैरियर, द वायरस इज कैरियर इन विच we are allow the infection of this virus into the cells, and which cells, which is responsible for the insulin production. Okay, so here is plasmid. अब ये वायरस क्या होगा, इसका इन्फेक्शन होगा कहां पे, इस बीटा सेल्स में, बीटा सेल्स विच हैविंग द इंसुलिन डीएनए या इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए। ठीक, तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट एज अ रिजल्ट, दिस इज द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ऐसे रहेगा, एंड दिस इंसुलिन एंजाइम्स इज गेट कनेक्टेड विद दिस। क्लियर, अभी ये प्लाज्मिड ऐसा नॉर्मल था। ओके, नाउ द प्लाज्मिड, यहां पे ऐसे लिख दो, दिस इज द आई डीएनए लिख दो, या जीनोम्स का। ठीक, ओके, ठीक है। वी आर अलाउइंग द व्हाट, वी आर अलाउइंग द इन्फेक्शन of what, the virus invaded over the cells which are having the insulin production या insulin productive DNA or genomes. Okay, now this insulin product is what get infected, now the plasmid with having the insulin producing DNA. ठीक है, now we will the further process is we will select the bacteria, or you can say we will select the host cell, or you can say bacteria. Okay, host bacteria, and this DNA of the virus is again, अब ऑब्वियस बात है कि ये मैं इतना दिखा रहा हूं, बट कि ये कंप्लीट पूरा क्या है, वायरस है। ओके, नाउ दिस वायरस इज अगेन इन्फेक्टेड दिस बैक्टीरिया। ओके, and what is resulting is the bacteria with plasmid of with plasmid of
इंसुलिन प्रोड्यूसिंग। क्लियर? ये हमने होस्ट सेल लिया, जो ये होस्ट सेल था इसके अंदर जो प्लाज्मिड था, जो इसका प्लाज्मिड था इसका खुद का, उसको रिमूव आउट करवा दिया गया। ठीक, इसको क्या कर दिया गया? रिमूव्ड कर दिया गया। फाइन। एंड इन्फेक्शन हुआ, तो हियर इज द प्लाज्मिड विद द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए। ओके, नाउ this body is placed into the what? Into the culture media। यहां पे ऐसे जब इसके अंदर आएगा, अरे जाओ भाई, हो गया। In the laboratory we are performing this। Okay, in the culture media, and now this is responsible for the production of insulin at industrial level। Okay, so here this virus is the vector, considered as the vector, the carrier after the infection over the cells having the insulin producing enzymes। Okay, insulin producing enzymes, it get infected and carries the iDNA। I is denoting the insulin। Okay, उसके बाद फिर इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? जाके इन्फेक्ट करेगा। आफ्टर द इन्फेक्शन द प्लाज्मिड ऑफ द iDNA is reached into the bacterial cell। now this bacterial cell is get cultured artificially, okay, in the laboratory। और धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा? मास प्रोडक्शन करेगा ये किसका? इंसुलिन का। ठीक, तो दिस इज द recombinant DNA technology by the vector process। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये प्लाज्मिड हमें ये मिल जाएगा ना विद क्या? डीएनए, है ना? तो पहली चीज तो आप ये जो बीटा सेल आप देख रहे हो, ये बॉडी के अंदर डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं कराएंगे। ओके, वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर बीटा सेल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, उसमें इसका इन्फेक्शन कराएंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर कराने पे फिर ऑब्वियस बात है वायरस का तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा वो, है ना? और फिर वो पूरी बॉडी में फैलेगा, फिर उसको करेक्ट कहाँ से करेंगे, है ना? उनको किल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगे? इन विट्रो परफॉर्म की जाएंगी। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बताओ एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। स्किन, बिल्कुल। When we will talk about the genetic engineering, okay, so the recombinant DNA technology is a part of the genetic engineering। okay, अभी हम बात करेंगे आगे assisted reproductive technologies का, ARTs का। okay, in this we will discuss about the वही जो आपने बोला डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी। ओके, दैट मीन्स कि हम कुछ भी कर सकते हैं चेंजेस उसके अंदर में। ओके, जो पेरेंट्स जैसा चाहेंगे वैसा उनका बेबी दिखेगा। राइट, तो अभी हमें एप्लीकेशंस पे ध्यान देना। हाँ, डिजाइनर बेबी इज ओके, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे मोरल एंड सोशल इश्यूज आर रिलेटेड टू द डिजाइनर बेबी, करेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस में आपने जो भी बोला सही है, लिखो 1 2 4 इसमें एप्लीकेशंस। द फर्स्ट वन इज द यूज्ड टू डिटेक्ट द used
to detect the presence of HIV virus, in a person. अच्छा, अभी जो लोग नहीं है फर्स्ट क्लास में, वो सेकंड क्लास में आ जाएंगे क्या? अब आएंगे नहीं? अब आएंगे नहीं ना? हुँ? नहीं नहीं, जो अभी ये सेकंड क्लास में जो भी चलेगा, अब इसमें नहीं आएंगे ना? ऐसा क्या क्रेज है यार उसका 25 दिसंबर सेलिब्रेट करने का कि क्लासेस ही छोड़ दें? हैं? अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मैं बाहर था, पढ़ा रहा था, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में था मैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस एज लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग लाइक दिवाली एंड होली एंड ऑल। मतलब ग्रेट है, बड़ा त्यौहार है उधर का, फाइन फेस्टिवल। ठीक है, उधर छुट्टी मिलना लाजमी है, इधर क्या कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं है क्रिसमस। गिटार उटर लेके गए होंगे कहीं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे सीपी में ले जाके बैठ के चल रहा हो? हैं? कौन सा गाना? कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो लेके गए होंगे तो 3 इडियट वाला गाना गाए होंगे, मर मर के जी चुके, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीन थेरेपी। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, इसमें आगे डैश करके लिखना, इट इज यूज्ड एज एन अटेम्प्ट, it is used as an attempt to correct the gene defect, to correct the gene defect which give rise to hereditary diseases. Okay, here is 2 words and don't get be confused by these 2 words. ये बना लिया था ना? Okay. The first is the gene therapy and second one is the gene editing. Okay. What are the difference between the gene editing and the gene therapy? Obvious सी बात है, in the gene therapy we are removed out the defected genes. Okay. But in case of the gene editing we are adding the desired genes. ठीक है? That means the host have never the defected gene in case of the gene editing. ठीक है, उसके पास कोई ऐसा जीन नहीं होता जो कि डिफेक्टेड हो इन द कंडीशन ऑफ जीन एडिटिंग। हम करते क्या है, बस एक दूसरा जीन ला के ऐड करते हैं फॉर द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस। clinical diagnosis. In the clinical diagnosis, डैश करके लिखना, यहां ब्लैक लगा। ELISA test. What is ELISA test? कब किया जाता है ELISA टेस्ट? Especially in the diagnosis of the some retroviral diseases like AIDS. To detect the AIDS or HIV virus, we are performing the ELISA test. What is the full form of ELISA? Nahin, this is nothing. This is the enzyme linked इम्यूनो। बहुत जगह आपको सॉर्बेंट मिलेगा,
बहुत जगह नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप मतलब अपने आप को परेशान मत करना. दिस इज ऑल्सो फाउंड द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, और यू कैन से द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. लिखो, एलिसा इज एन एग्जाम्पल. ELISA is an example where the application of recombinant where the applications of recombinant DNA technology is applied. Okay. Next point. Recombinant DNA technology. Recombinant small r DNA and tech. बस एग्जाम में भी आपने जब अभी कभी आएगा तो फर्स्टली यू हैव टू दी राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फुल फॉर्म के बाद ब्रैकेट में ऐसे लिख देना आर डीएनए टेक, एंड नाउ यू कैन यूज इन योर अदर पार्ट्स ऑफ द आंसर. ओके, कर यूज सकते हो उसको भी यूज ऑफ, लेकिन पहले एक बार डिस्क्राइब कर देना. उसके बाद एब्रिविएशंस कभी भी यूज करना, लेकिन एब्रिविएशंस का आप क्या पहले एक्सप्लेनेशन दे देना उसके बाद. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन agriculture to produce GM organism such as और मिलिए आपको जीएन ऑर्गेनिज्म, फ्लेवर सेवर टोमेटो, such as flavor saver tomato, comma, golden rice rich in proteins, golden rice rich in proteins, BT crops एक्सेट्रा. देखा कभी फ्लेवर सेवर टोमेटो? देखा? व्हाट इज अ फ्लेवर सेवर? ना फ्लेवर इज फॉर किस लिए? हाँ भाई फ्लेवर, और क्या? टोमेटो फ्लेवर के लिए. फाइन, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ टमाटर पड़ा हुआ है किसी भी चीज में, किसी भी मटेरियल में. व्हाट इज सेवर? सेवर मतलब सेफ रखने वाला. दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि द लाइफ ऑफ द टोमेटो इज हायर. बहुत दिन तक आ रहा है मार्केट में, खाते हो सब लोग. टमाटर आते हैं ना मार्केट में. टोमेटो, 2 टाइप्स आर टोमेटोज आर इन द मार्केट. तो एक तो राउंड शेप वाला होता है, एक थोड़ा सा, यस, so that is considered the flavor saver tomato. धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से अपन लोग घिरे हुए हैं, समझ में नहीं आती बातें. ओके, बिफोर आई थिंक 2 years ago we all are using the BT brinjal. सब खाए होगे एक बार. मैं नहीं खाता क्योंकि मैं ब्रिंजल ही नहीं खाता. तो मेरे अंदर टॉक्सिन नहीं गया. ओके, लेकिन आप मतलब कि बहुत लोग मोस्टली दे हैव यूज्ड एट अ सिंगल टाइम एट लीस्ट. कैसा होता है बीटी ब्रिंजल देखने में? देखा कभी? देखे हो? पता ही नहीं है. कैसा देखा होगा लेकिन पता नहीं हो. यस, दिस इज द करेक्ट. आपने देखा होगा लेकिन आपको पता ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करो बीटी ब्रिंजल? बीटी ब्रिंजल अगर आप देखोगे तो मीडियम साइज ऑफ ब्रिंजल, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा था ना तो बहुत ज़्यादा छोटा. जब आप उसको आप हाथ में लोगे ना तो उसका स्किन बहुत ही एकदम शाइनिंग करता था, बहुत शाइन करता था उसका स्किन. और आप उसको चेक करोगे ना,
नॉट इवन अ सिंगल उसमें आपको पोर नहीं मिलेगा कहीं भी उसमें क्या रहेगा, कहीं भी कोई छेद नहीं होगा उसमें, कोई पोर नहीं होगा, और कंप्लीट एकदम। और जब उसको काटोगे तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, वो या तो नहीं होंगे या तो बहुत माइन्यूट होंगे, होंगे ही नहीं मोस्टली। तो दैट वाज कंसिडर्ड एज बीटी ब्रिंजल, वो बीटी ब्रिंजल होते थे, फाइन। इसीलिए उनके ऊपर कोई भी छेद, अगर ब्रिंजल हो रहा है अगर उसमें छेद ना हो तो फिर ब्रिंजल किसका होगा? हाँ, क्योंकि द पेस्ट आर रेडी टू ईट द ब्रिंजल, एकदम हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। जैसे ही हो, देखो सबसे ज्यादा जो बैगन के जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वेयर द ब्रिंजल इज कल्टीवेटेड, तो उस जो फार्म एरिया में होता है ना, तो उसके सराउंडिंग में बहुत मतलब इंतजाम करते हैं वो फार्मर्स जो होते हैं। और टाइम टाइम पे क्या करते हैं, जो एसेस होती हैं ना घर की चूल्हे वाली एसेस, उसको उसका छिड़काव करते हैं, ताकि इसकी वजह से पेस्ट इसके ऊपर बैठे ना, फिर दवा एंड ऑल बहुत कुछ। रीजन इसका है ना, रीजन इज दैट कि जैसे ये पौधा होता है, पेड़ होता है ना उसका, किसका? ब्रिंजल का। जैसे इसके पत्तियां लगी रहेंगी, ब्रिंजल नीचे लटकेगा हमेशा, ऐसे पैदा। अब उसके ऊपर से जैसे वी आर जस्ट व्हाट स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स एंड अनदर इंसेक्टिसाइड्स, तो ऊपर ऊपर तो पड़ रहा है, अब नीचे नहीं आएगा, और नीचे इंसेक्ट जाके तुरंत इसको क्या कर देगा, है ना? दिस दिस इज द रीजन। और पत्ते भी इसके ठीक ठाक होते हैं, चौड़े चौड़े, तो ढक के भी रखते हैं इसको बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है कि टोमेटो भी नीचे ही होता है, लेकिन उसके पत्ते भी पतले पतले रहते हैं, तो आराम से पेनिट्रेट करके प्रेशर से, इंसेक्टिसाइड से, जो भी हमारे केमिकल्स में पहुंच जाते हैं। केस ऑफ द ब्रिंजल्स नॉट हैपेंड। ऐसे ही रीजन है कि ब्रिंजल्स बहुत ज्यादा क्या होता है ना? एग्रीकल्चर क्लास नहीं चल रही है, डोंट वरी, ऐसे ऐसा मत सोचो सर एग्रीकल्चर पढ़ाने लगे। चलो नाउ actually for the recombinant DNA technology, even for the actually gene editing, we are using the recombinant DNA technology. ठीक है, that means the recombinant DNA technology is the techniques for the gene editing. Okay, in the year of 2012, okay, a new technology is discovered which is known as the CRISPR-Cas9 technology. R था CRISPR-Cas9 technology. Actually, in the CRISPR-Cas9 technology is developed by the अभी 2020 का जो नोबेल प्राइजेस थे, कौन कौन से थे? कोई चारपेंटियर एंड द डॉडना, हाँ? इनको ओके 20 में ये थे शायद ना, दे आर द नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री। ओके, पूरा नाम भी कुछ है इनका, पता नहीं कुछ होगा, जानते रहो केवल दिस इज ओके। दे एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस टेक्निक्स। ओके, दे डिस्कवर्ड दिस टेक्निक्स। क्रिस्पर स्टैंड फॉर व्हाट, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? C for clustered, R for regularly, okay, I for interspaced, okay, S for short, P for palindromic, and R for repeats. Okay, and the case 9 is nothing, this is the CRISPR, C for CRISPR, or AS associated 9 protein. Okay, this is the clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats.
क्या होता है पैलिंड्रोमिक यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैलिंड्रोमिक? अगर ये समझ में आ गया ना तो क्रिस्पर इज वेरी इजी. व्हाट इज पैलिंड्रोमिक? पैलिंड्रोमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम मीन्स व्हाट इज द पैलिंड्रोम मीन्स? व्हाट इज पैलिंड्रोम? नो, नो. ओके. एक्चुअली अगर बात करें तो दिस इज come from the Greek sources. Okay. The word palindrome is actually denoting that any word or sentences, okay, which are reading just same in both the forward and the backward direction. ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, इडियम फ्रेज भी हो सकते हैं, इट मे बी सेंटेंस्ड. ओके. दैट मीन्स जैसे इफ आई एम राइटिंग द मैडम, MADAM, MADAM, ठीक है. फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ. ओके. लाइक नर्सेज रन, NURSES, nurses run, nurses run. Okay, that means these are considered as the palindrome. Okay, these are palindrome, just same, forward backward, है ना, दोनों साइड से सेम. In the case of this palindromic, when the sequence of DNA of the both strands, ध्यान रखना, both strands, we know that DNA is a double strand structure, RNA is the single strand structure. ओके, हमने अब बात किया था कि जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए हमेशा कैसा होता है. कुछ रफ करना चाहूं मैं कर सकता हूं इसमें. ओके, ठीक. ओके, द डीएनए इज double strand structure. Something like that. Okay. If we are taking a sequence of DNA, then we will find, ऐसे suppose that वहां समझना थोड़ा मुश्किल है, मैंने strands को सीधा कर दिया है. Okay. Here is the two strands of the DNA. Clear? Okay. Suppose that here sequence है A T T A G C. फाइन. अब ये इधर A है, A इधर A इससे किससे कनेक्ट होगा? T A A T C G. ओके. अब यहां क्या है? आगे C G A T T A. अब ये C इससे किससे कनेक्ट होगा? G C T A A and T. Okay. That means in the both strands, okay, the sequence are palindromic in nature. कैसे palindromic? उठा लो, यहां से पिक कर लो. If we are picking this sequence, A T T A G C, फाइन. इसका अपोजिट क्या होगा? C G A T T A. हुआ? अपोजिट हुआ. ओके. दैट मीन्स दीज आर द पैलिंड्रोमिक. These are the palindromic. Okay. Okay. Now, the CRISPR Cas9 is
not a new invention. It's not a new invention. Actually, the viruses, sorry, the bacteria are using this technology from the बिल्कुल later age, जो भी कह सकते हो आप. Okay, from the this CRISPR technology is a immune system of bacteria. This is the immune system of bacteria. What should the bacteria do by this CRISPR technology? Actually, when the bacteria is infected by the viruses, and the viruses which infect the bacteria are called the bacteriophage. क्या बोलते हैं इनको? Bacteriophage. The viruses which have tendency to infect the bacteria is considered as the bacteriophage. Now what happened? This bacteriophage is infected the bacterial cell. Okay. Now the plasmid of the viruses is introduced into the bacteria. ठीक, इन्फेक्शन हुआ, द बैक्टीरिया इज, जैसे हमारी बॉडी में होता है, इन्फेक्शन हुआ, आवर बॉडी इम्यून सिस्टम गेट व्हाट, गेट अवेकन, जग गया. उसके बाद क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ द WBCs एंड लिम्फोसाइट्स एंड ऑल सब का प्रोडक्शन स्टार्टेड एंड द इम्यून सिस्टम इज गेट started their working. In the bacterial cell, when the viruses is infected the bacteriophage infected the bacteria, the introduction of the virus, or you can say the viral plasmid into the bacterial plasmid. In that case, what happened? These palindromic structures of the DNA, or you can say plasmid of the bacteria, okay, is producing a specific type of the protein. And which protein? The protein name is the Cas9 protein. Okay, Cas9 protein. This Cas9 protein, Cas9 का full form क्या था? CRISPR associated, yes, 9 protein. And this Cas9 protein, and this Cas9 protein acts as a Caesar. It's act like a Caesar. Okay? ये किस तरह से काम करेगा? एक Caesar की तरह काम करेगा. Naturally, listen. Naturally, the Cas9 protein inside the bacteria is found in the inactive form. Inactive form. Okay? But when the viruses is inserted into the bacteria, that means infected the bacteria, the bacteria's plasmid is generating the guide RNA. Guide RNA. अब ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम ही है गाइड. गाइड मतलब गाइड करेगा किसको? इट बाइंड्स विद द Cas9 प्रोटीन, and after the binding this guide RNA with the Cas9 protein, this Cas9 protein is activated. Okay, and now the Cas9 protein is acts as a Caesar. अब क्या होगा? ये Caesar की तरह काम किया. अब बनाना ही नहीं आता मुझे, चलो बना देते. ऐसे कुछ होता है Caesar. Okay, this is our Cas9. Fine. Suppose this was the plasmid of bacteria, and here the connection of the virus plasmid. That means this is the V plasmid, and this one is the bacterial plasmid. Okay. Now this is the Cas9 protein. The Cas9 is reached to the infected plasmid. Okay. And after reaching here, it just cutted this V plasmid from the bacterial plasmid and securing the complete plasmid of the bacteria. ठीक, जैसे इसके DNA के सीक्वेंस को कट करेगा. अब देखो,
अब थोड़ा सा इसको यहां समझो। सपोज करो कि यहां मैं एक डीएनए बना रहा हूं, प्लाज्मिड बना रहा हूं, और दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स, उसमें भले ना आए, आप समझो केवल, ठीक है। यही चलो, फाइन। दिस इज द, कोई ये ऑब्वियस सी बात है, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस, इधर भी और इधर भी, फाइन। ओके, द इंसर्शन ऑफ द बैक्टीरियल plasmid is making a defect in the bacterial plasmid. Okay, that means जो अभी तक ये ऐसे था, these are the, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ओके, दिस इज द, जो रेड आप देख रहे हो, दिस इज द वर्ड, दिस इज द वायरल प्लाज्मिड सीक्वेंस। Clear? This is the viral plasmid sequence. Now this case 9, this seizure is act on this section. Okay, यहां पे पहुंचेगा और करेगा क्या, ये okay, and start cutting फ्रॉम दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन को क्या करेगा, वो कट कर देगा। अब कट करने के बाद ये सेक्शन क्या हो गया, अकेला हो गया। दैट मीन्स इसका जो कोट्स थे इस पे, दे आर नॉट एबल टू बाइंड विद एनी यू कैन से द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और इसके जो प्लाज्मिड थे अगेन क्या करेंगे, डीएनए इसके फिर से सीक्वेंस करके स्ट्रैंड्स बना देंगे। क्लियर? तो this CRISPR is using by the bacteria as a immune system. वो अपने आप को बैक्टीरिया से बचाते हैं, किससे, वायरल इन्फेक्शन से। ओके, करना इसको नोट कर लो।